अगर पोस्टर होना होगा उस मूवमेंट का हमारा, उसमें आपके भाई का ऐसा होगा पोस्टर। सब हमारे बोलते हैं भाई क्यों करती है क्यों गाती है, मैं कहा, मेरी मर्जी में गाती हूँ, इसमें क्या। टू हेल्प देम, आपने जो भी किया, हैट्स ऑफ टू यू। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पिक्चर की स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ। दिस इज कमाल है। Hi guys, good afternoon. This is Ran Vijay and I'm your host for the day. Today we are here for a very special occasion. I just want to say that I'm honored to be in the presence of such amazing women. Bank of Baroda has always been a strong supporter of women. They have not only supported these mega sportswomen who are with us today, but also supported the unseen sheroes of our country through schemes like Baroda Mahila Shakti Savings Account and Baroda Gold Loan for Women. And of course, we are here today to salute the undying spirit of the winners who've been brought to the forefront by the Salute Har Shakti social media contest held by Bank of Baroda. So wherever you guys are, and if you're watching, a round of applause for this great cause. We have really special women with us today, and some of them you know their stories, but some of these stories we're bringing to you, and this is thanks to the Salute Her Shakti. This is thanks to Salute Her Shakti social media contest that has been held by Bank of Baroda. I want to now call upon one of the biggest sports stars that India has seen. We're going to be joined by one of the biggest names in Indian women's sports today. She is the recipient of the Padma Bhushan, the Padma Shri, and Major Dhyan Chand Khel Ratna. She is the first woman to bag 2 Olympic medals, 2016 Rio and 2020 Tokyo. She holds the Badminton World Federation title under women's singles in bronze for 2013 and 2014, silver for 2017 and 2018, and gold for 2019. She is India's very own badminton superstar, PV Sindhu. Please welcome PV with a huge round of applause. Hello everyone. Namaskar. Hi PV, how are you? How are you doing today? I'm good, thank you. How are you? Very well. You know, there are times when I meet people and I ask them questions and stuff like that, but I feel like I know so much about you because we've been following your journey. We're so proud of you. So as a fan, please take my high, and after this, I'm going to try to overcome my this awkwardness because I'm actually really in awe of what you've achieved at such a young age. What do you have to say about that? Thanks a lot. Thank you so much. So tell me, as a sportswoman, there are challenges when you're in school or college and growing up. Did you face any of them growing up, or was it just a piece of cake for you? Yeah, well, it was never a piece of cake for me, but yeah, there were definitely a lot of challenges, a lot of sacrifices in life. Where firstly, I would like to thank my parents because they've been very supportive all the time, and they were encouraging all the time to whatever I did because they themselves were volleyball players. So of course, yeah, that I would say I'm thankful for that because they knew what it was, and because they've come up from that level. So when I started playing initially, so my dad always guided me in a right way, and I think because of them I'm here today. And when it comes to sacrifices and challenges, there were times where they both used to work in railways. So there were times where my practice sessions were really far away, so they had to give VR to their jobs so that we could shift nearby to the stadium, nearby to the academy. And for me it was not much of a difficulty, where as soon as I come home, my mom always was there ready with the food. She used to prepare food, and my dad used to take me every day to the stadium, even now. So I think that was one of the biggest sacrifices that they have done in their life for me. So I'm very thankful for them, and yeah, I think that is why I'm here today. Honestly, the fact that you have given all the credit to your parents is commendable. So proud of you. They must be so proud of you because I feel like a lot of what we achieve is because of the way we've been brought up, and you answered it so gracefully.
Just want to know how excited are you? Also, volleyball and badminton, the funda is similar. There's a net, you got to get this guy, this ball or the shuttle across the net. So they understood the basic funda and they're like, okay, we know what she's doing. How excited are you to be here with us today? Well, I'm super excited because, all the women out there, as you know, we're talking about the Salute Her Shakti. So I'm really very excited and I would like to congratulate सब लोगों को क्योंकि मेरे से आप बहुत बड़े हो तो I would always आपके blessings मुझे हमेशा चाहिए and मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इधर हूँ और अब सबसे बात कर रही हूँ. So sweet. You're also such a sweet person, but when I've seen you play, the competitive spirit comes out and you have a killing instinct. And we're going to talk about it, but there is another person that I want you to meet right away. Kya bolun? She is the youngest Indian cricketer to make a debut in all formats of international cricket. She is the youngest cricketer to score a half century in international cricket. She's also been ranked the #1 batter in women's T20 cricket. She is India's youngest batting sensation, Shafali Verma. Zordar तालियां. तालियां बज रही हैं. Hi Shafali, welcome. क्या हाल आपका? बहुत अच्छे. सबसे पहले सबको नमस्कार. बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ जुड़ के. शफाली, सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा, जब आपको बैटिंग करते हुए दिखते हैं ना तो मजे आ जाते हैं. जब वो पटाखा लगता है ना, ऐसा लगता है कि आहा. जब आपने खेलना शुरू किया, क्या ऐसे किसने बोला कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती? एक टाइम वो बॉलीवुड मूवी में आता ना कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, वैसे क्रिकेट में भी ऐसा था क्या? या ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहली बात मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो हर एक बच्चा चाहता है. बट जितने मेरे नेबर्स थे, जब मैंने स्टार्ट किया तो वो हमेशा मेरे पापा मम्मी के पास आते थे और बोलते थे कि मत खिलाओ इन्हें कि काली हो जाएगी. उस टाइम पे तो ये रहता था कि लड़कियां काली ना हो जाए काली हो जाएगी और लड़कियों के साथ खेलेगी तो कहीं लग जाएगी या कि बॉल लग जाएगी खेलेगी तो, या कुछ हो जाएगा, शादी वगैरह कैसे हो पाएगी. मतलब ऐसी बातें होती रहती. पर मेरे पापा मम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, वो सभी बात ना सुन के, और ना ही मेरे पास तक वो बातें आती थी, जो सबसे अच्छी चीज थी. तो वही सपोर्ट से मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ अपनी फैमिली को हमेशा. मेरे सबसे पहले मेरे भाई को मेरे पापा प्रैक्टिस कराने के लिए लेके जाते थे. तो एक दिन वो मुझे ले गए और मैं उस दिन बैठी थी भैया के लिए बॉल कलेक्ट कर रही थी. तो पापा को मुझे थोड़ी सी दया आ गई मुझ पे. वो बोलते चलो आप एक बॉल खेल लो. तो मैंने मतलब अच्छा खेला. तो मेरे भाई को टोंट मारते कि तूने इतनी देर से खेला है, तूने इतना अच्छा शॉट नहीं मारा जो इसने मार दिया. तो तब से ये चीजें तब से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो गया और मैंने लड़कों में खेलना स्टार्ट किया, जो मुझे हमेशा यूज देता है कि भाई मैं जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाके खेलती हूँ मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि मैं लड़कों के साथ खेलती हूँ. तो वही चीजें, छोटी चीजें मुझे इंस्पायर्ड करती हैं और मतलब बहुत कुछ चीज सीखने को मिलती है. लोगों की स्टोरी में फैमिली के अक्सर अच्छे एनेक्डोट्स होते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी में ना ऐसा अगर पोस्टर होना होगा उस मूवमेंट का, जब आपके पिताजी ने बोला कि ये देख कितना अच्छा शॉट मारा, उसमें आपके भाई का ऐसा होगा पोस्टर. तो वो उसने काफी इंस्पायर किया आपको कि तो अभी आपके भाई आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस कराने आते हैं? कभी मैं जब भी जाती हूँ मेरा भाई हमेशा आगे खड़ा होता है पापा से कि चलो मैं आज इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा. पता है अगर ये पीछे खड़ा रहेगा बॉल उठाने के लिए तो टोंट हमेशा लगेगा. तो मेरा भाई हमेशा आगे रहता है कि मैं बॉल डालूंगा. अरे वाह. तो अब पता है क्रिकेट में स्पेशली बैट्समैन का जो किट बैग होता है वो काफी भारी होता है. उसमें पैड भी होते हैं, अलग अलग चीज होती है, हेलमेट भी होता है, बैट भी 2-3 अलग होते हैं. तो जब इंसान थोड़ा बेहतर प्लेयर बन जाता है ना, तो फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि नहीं बेटा किट बैग मैं उठा ले. तो वो क्या आपके भाई है अभी? ऑफ कोर्स अभी होता है. जैसे पहले तो मेरा भाई बोले चल तू उठा ले किट बैग. अभी बोलता है चल बहन मुझे दे दे, कोई नहीं तुझे तकलीफ होगी ऐसे करके. तो बहुत अच्छी आती कई बार उससे. मैं बोलती हूँ कितना प्रोफेशनल मत बन, मुझे तेरी हरकतों का पता है. So sweet. This is so happy. आप एक दूसरे से पहले मिल चुके पीवी एंड शफाली. आपने एक दूसरे के को देखा है कभी खेलते हुए जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ऐसी कॉमन फीलिंग्स जो हम
हमें नहीं पता, जो हम सिर्फ एज फैंस देखते हैं, कुछ आप शेयर कर सकती हैं दोनों? ऑफ कोर्स जब मैं पीवीडी को खेलते हुए देखती हूँ, मेरे पापा, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, मैं इनके मैचेस देखती थी, मेरे पापा बोलते थे देखो ये इंडिया खेलती है और ये ऐसा बन के दिखाना है आपको, ऐसी फिटनेस इनकी, जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते रहते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी फिटनेस और बहुत अच्छा खेलते हैं, हम हमेशा इंस्पायर होते हैं, इनके मैच देखते रहते हैं। तो यू आर प्लेइंग वेरी वेल दीदी। Thank you. Yeah, of course, even I keep seeing her matches. तो बहुत अच्छे लगते हैं कि as a woman, we are representing the country, so it feels really nice. And सब लोग हमको देख के they get so inspired by us, and that makes us feel very happy. So I think their support and their love and blessings, I hope they'll always be with us, and we will definitely get many more laurels to the country, to the nation. Yes. You guys are so kind. You already achieved so much, और आप अभी भी बोल रहे हैं कि आपको हमारा प्यार, हम कौन होते हैं, but we are so happy and privileged. और आज मैं बहुत ही privileged फील कर रहा हूँ, बहुत ही honored फील कर रहा हूँ कि आप दोनों के साथ हूँ, लेकिन साथ में हमारे साथ और भी great महिलाएं जुड़ने वाली हैं, and let's meet them. हमारे साथ आज एक और ऐसी महिला जुड़ रही हैं जिन्होंने राजस्थान का एक छोटे से गांव से निकलकर इंडिया का नाम पूरे विश्व में मशहूर कर दिया है। स्पोर्ट्स में नहीं, लेकिन आप जान जाएंगे। She has been awarded the highest civilian honor for women in India, the Nari Shakti Puraskar, presented by the Honorable President Shri Ram Nath Kovind ji for promoting Indian folk music internationally. She is an internationally acclaimed Mand and Bhajan folk singer from Jaipur, Rajasthan. She has performed in 25 countries. You name it, like France, Spain, Belgium, Italy, Tunisia, and many more. Please welcome Shrimati Batul Begum ji. Zordar taaliyan. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बतूल जी, कैसे हैं आप? क्या आपका हाल है? मैं देख रहा हूँ कि सामने तबला भी रखा हुआ है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हमारे को खुशी है, हम बहुत खुश हैं, हम तीनों, शफाली जी भी यहाँ पे, टीवी भी यहाँ पर, कि आप हमारे साथ जुड़ पाए आज। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, और आपको सबको धन्यवाद देती हूँ और सबको नमस्कार बोलती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा है, मेरी तरह, मैं भी लंबा हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे और वो राजस्थान की एक रेजिमेंट है, राजपुताना राइफल्स, उससे थे। वहां पर ना जो वहां के मेन है राजस्थान के, वो बहुत ही सदियों से वीर वॉरियर्स, मतलब उनके बारे में गाथाएं लिखी गई हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन उनके बीच में एक छोटे से गांव से निकलकर हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का ये जो फीलिंग है, मतलब गांव में आपके चर्चे होते हैं, हाँ जयपुर में चर्चे होते हैं आपके, तो वो फीलिंग कैसी है ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, और मुझे हमेशा से ये थोड़ा शौक था गाना बजाने का ही, और मैं छोटा सा गांव में पैदा हुई, बिल्कुल छोटा गांव था, तो हमको तो फुर्सत, हिंदी बोलना भी बहुत कम आता, राजस्थानी मारवाड़ी हम तो वो भी कम आता है मेरे को, और शौक था तो मैं शुरू से 7-8 साल की थी जब से मेरे को ये शौक लग गया, गाना बजाने का रुचि थी मेरे। तो सब हमारे घर वाले सब बोलते थे ये लड़की तो बहुत है, इनको गाना बजाना का बहुत शौक है। अब हमारे पास वो बजाना का कम ही थे गांव में, तो मुझे कोई मैं गाना सुन लेती तो मेरे वो दिमाग में बैठ जाता कि ये गाना है, इनका ये ठेका है, इनका ये बजाना है, तो मेरे दिमाग में थी। तो सब घर वाले ये सब बहुत शौक है बहुत इनको, तो फिर भी मैं करती रही। चलो वो फिर समाज में बोले चोरी क्यों कर रही है तो लड़की ऐसा काम है, मेरी रुचि तो मैं करूँ। फिर वो सास बात नहीं थी, तो हमारे पास फिर छोटा सा मंदिर था भगवान का, तो हमारी उनकी दीवार एक ही थी, तो वो मैं कोई गाना गाती थी तो वो मंदिर में एक ढोलक थी छोटी सी, तो उस पर जाके मैं बजाती, और अपने ठाकरों के और ब्राह्मणों के बनियों के सब चौधरियों के जाटों के सब शामिल ही थे। हम गांव में तो सातवीं कौम होती है, तो सब शामिल भजन गाती थी उसमें बैठ के, तो मेरी वो रुचि हो गई। फिर मैं करते फिर वो
सब गाने को माड है, ये है, सब में मेरे शौक था तो मैं करती थी। वाह, आपने तो कमाल का हमें अपनी स्टोरी बताई। क्योंकि ना एक होता है कि हाँ घर पे कोई बच्चा है, और आपके टाइम पर अभी तो क्या है कि हमारा देश बहुत प्रगति कर चुका है, सोच विचार भी हमारे थोड़े खुल गए हैं, इक्वालिटी की बात होती है कि सब एक जैसे। उस टाइम पर एक तो शौक किया कि आपकी रुचि है, आपके पास एक स्किल है, आप गा सकते हैं कि हाँ हमारी बेटी गाती है या लड़की गाती है, लेकिन उसको अपना उस हुनर को अपना करियर बनाना, अपना काम बनाना, वो आसान था कि उसके लिए मुश्किलें आई कि ठीक है बेटा, जब तक तुम गा रहे हो यहाँ पे गांव में फंक्शन में गा रहे हो, मंदिर में गा रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन अब तुम बाहर जाओगी, कैसे जाओगी, इंडिपेंडेंट कैसे रहोगी? तो इसमें तो कुछ कठिनाइयां आई हैं आपके पास? कठिनाई तो बहुत ही आती है। समाज में भी बोले क्यों करती है, क्या करती है, और बाहर जाने का तो चांस ही नहीं था। मैं तो छोटा सा गांव में पैदा हुई, तो बाहर का तो सवाल ही नहीं, सपना ही नहीं थे। हमको तो जयपुर ही बहुत बड़ा लगता, फॉरेन लगता था, जयपुर आना ही। आज तो मालिक की दुआ है, भगवान की कृपा है, सबकी कृपा है, क्या पता कैसे मैं यहाँ पहुंच गई। तो जयपुर ही हमारे आज हम बहुत फॉरेन था। हम तो बहुत खुश है कि आज हमें बिना कहीं आए, कितना बैंक में गाती रही बजाती रही, सकस करी, सब हमारे बोलते हैं क्यों करती है, क्यों गाती है। मैं मेरी मर्जी में गाती हूँ, इसमें क्या। उसके बाद में शादी आती हो गई, फिर मैं मेरे पति को भी बोली मेरे को शौक है ये गाने का, तो और उनको पता भी है गाती है, बता घर में ही फंक्शन होता तो गाती थी, और था मैं शादी ब्याह में और घर में ही गाती थी। तो उन्होंने बोला भाई मेरे को, भाई मेरा तो शौक है, चाहे मैं खाना छोड़ दूं, लेकिन मैंने गाना बजाना का बहुत शौक है। खाना चाहे 4 घंटा लेट दे दो, लेकिन मैं तो गाती हूँ। तो फिर मेरे पति ने बोला भाई तेरा शौक है तो चलो कर तू, कोई बात नहीं। बहुत ये आपने बहुत पते की बात बोली, बिकॉज जैसे कि शफाली और पीवी ने हमें बताया कि उनके पेरेंट्स का शुरू से ही उनके पास सपोर्ट था, और कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होने दिया कि लड़की लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि जो एक एथलीट के लाइफ में चीजें होती हैं, उससे सबसे बड़ी चीज होती है फैमिली की सैक्रिफाइस। क्योंकि एथलीट तो खुद एक बच्चा होता है और उसी उम्र पे शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आपकी लाइफ में जब आपके पति ने आपको हेल्प की, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, वो एक अलग तरीके का सपोर्ट दिखाता है। और उसके लिए जैसे कि इनके पेरेंट्स को हमारी तरफ से सैल्यूट, वैसे ही आपके हस्बैंड को भी हमारी तरफ से सैल्यूट। लेकिन आज आप तीनों की जो स्टोरी है उसके साथ कुछ और स्टोरीज जुड़ने वाली है। एंड फाइनली बात करते हैं उनकी, जिनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब इस इवेंट में शामिल हुए हैं। ये वो महिला है जिनका नाम हम और आप शायद अब तक नहीं जानते, लेकिन इनकी मेहनत और स्ट्रगल ने इन्हें एक्सेप्शनल बनाया है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ये वो महिला है जिनकी शक्ति ने कभी हार नहीं मानी, और आज हम सबके लिए ये एक इंस्पिरेशन ऑलरेडी बन चुकी है। ये वो महिलाएं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सैल्यूट हर शक्ति कॉन्टेस्ट के जरिए उभर के आई हैं। अ बिग वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस टू नीलम रानी जी एंड किरण देवी बोथरा। जोरदार तालियां हमारे साथ हैं नीलम जी और किरण जी। नमस्कार, सैल्यूट हर शक्ति। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। आपके साथ हमारी आप देख रहे हैं कि शफाली हैं, पीवी सिंधु जी हैं और बतूल जी हैं। हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं और आपको सैल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला आपकी इंट्रोडक्शन में कि शायद आपका नाम अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन आपकी जो कहानी है उसने ऑलरेडी हमें और जितने भी लोग ये देखेंगे ये प्रोग्राम को उनको ऑलरेडी इंस्पायर कर दिया। तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ सबको जो यहाँ पर आए हैं, दोनों की स्टोरीज थोड़ी, पर उससे पहले किरण जी से बात कर लेता हूँ। किरण जी क्या हाल है? एकदम ठीक है, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कहना चाहती हैं हाय, नमस्कार, कुछ कहना चाहती हैं? पीवी जी हैं, बतूल जी हैं, शफाली जी हैं, सभी को नमस्कार कर रही हूँ। पीवी ये जीत के आई हैं हमारा कॉन्टेस्ट,
salute her Shakti जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉन्टेस्ट किया है. First of all, I'm really proud to be part of this. Bank of Baroda, thank you so much for getting me in. इतनी सारी महिलाओं के साथ होना एक मतलब I think it's an achievement. On top of that, you guys are all आप कितनी मतलब strong नारियां हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने कुछ ठीक ही किया होगा जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठा हूँ. बीबी एंड शफाली जी और बतूल जी, मैं आपको किरण जी की कहानी बताना चाहता हूँ और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा किरण जी एक ऑर्डिनरी होम मेकर दिल्ली से हैं, बट उनकी स्टोरी इज नथिंग ऑर्डिनरी. इट्स एक्चुअली नथिंग शॉर्ट ऑफ इनक्रेडिबल. व्हेन द पैंडेमिक हिट, हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे टू फाइंड हेल्प, सप्लाईज, टाइम एंड एक्चुअली अपने आप को मॉरली support कर रहे थे, the strength to keep our mental state healthy. We were focused on our own survival, but there were some who were thinking of those that couldn't help themselves. Think about it. During those times, she would cook fresh food at home. उन दिनों जब हम अपने बारे में सोच रहे थे, every single day and distribute it for free amongst the homeless. This selfless generosity helped many people survive that tough time, and by doing this, she has taught her daughter that she can do anything in life as long as she puts her mind to it. Kiran ji, pandemic के टाइम पर जब हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, मैं इनको बता रहा हूँ, खाने पीने के लिए चीजें भी नहीं थी, मुश्किल हो गई थी और लोग तो मतलब मानसिक संतुलन से फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे. सब अपने घर में बैठे हुए थे और काम में इतने बिजी थे, ये सोचने की अभी क्या करें, घर में क्या करें, कैसे करें. उस वक्त आपने किस तरह ये वक्त निकाला, कहां से ये फंड्स निकाले, कहां से ढूंढा आपने ये जिगर कि यार जब इनकम लोग सोच रहे हैं कहां से आएगी, आपने अपने पैसे खर्चे, अपनी मेहनत लगाई और दूसरों के बारे में सोचा. ये कैसे आपको लगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब मैं एक बार बाहर देखने जा रही थी तो देखे कितने लोगों को दवाई की, खाने की नीड है, इधर उधर घूम रहे हैं खाने के लिए. तो मैंने सोचा शायद मैं भी इनकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, और मैंने अपने बच्चों के साथ ये बात सोच के इनकी हेल्प की. जैसे जैसे मेरे से बना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ 2007 में हो चुकी थी. So sorry to hear that. May he rest in peace. वो भी एक बहुत समय तक समाज सेवक थे. अच्छा. तो उन्होंने, मैंने सोचा शायद मैं भी कुछ कर सकूं, और मैंने अपने हिसाब से जो भी बना और जो भी मेरे बच्चों के, मेरे बेटे की हेल्प से मैंने ये सब काम किया. और जब भी होता, मेरे से बनता, मैं खाना बना के दे के आती बाहर जाके, कभी दवाइयाँ, कभी बेटे के साथ. और मैं और मेरे बेटा दोनों भी कोविड में ग्रस्त हुए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने ठीक किया और हम लोगों ने ये सब काम थोड़ा बहुत जैसे बना हम लोग से किया. आप तो जाके मतलब आपने तो लोगों की मदद की. लोग तो अपने घर से निकलने को डर रहे थे कि कहीं उनको कुछ पता नहीं था कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलेगा. ये हिम्मत स्पेशली आपने, यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपने अपने बच्चों को दिखाया. तो आज उनका जो एटीट्यूड है, उनकी पर्सनालिटी कैसी बन गई है आपको देखते देखते? वो तो बात है, लेकिन बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे को आगे बढ़ाया. बोलो मम्मी नहीं, करना है अपन लोग को, जैसे भी बनता है. और मेरा बेटा मेरे बहुत सपोर्ट किया, बेटा बेटी सब. और आगे जाके जैसे भी होता थोड़ा बहुत हम लोग जाके खाना, दवाई, जैसे भी जिसको जो नीड होती वो देते. किरण जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मुश्किल वक्त में कोई अपना ना सोचकर दूसरा और सोचता है ना, ये आसान नहीं है. क्योंकि उस टाइम पर तो लोग बड़े बड़े शहरों में तो ना स्टोर में जाके टिश्यू रोल तक और जो ये था ना सैनिटाइजर तक होल्ड कर रहे थे. मतलब जितने की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा खरीद के रख रहे थे, किसी को पता नहीं था. लेकिन उस टाइम पर आपने और आपकी फैमिली ने कमाल कर दिखाया. एक्चुअली पेंडेमिक के दौरान हम सबको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, स्पेशली एथलीट्स को. इनके टूर्नामेंट्स होते हैं. PV, you were actually during the pandemic, how difficult was it to actually keep yourself motivated? कि practice भी करनी है. You were actually training for the Olympics. आपको ये भी नहीं पता था कि 2020 में Olympics होंगे नहीं होंगे. Not knowing that, फिर भी practice करना, what was going on? What was the state of your mind and how difficult was it for you to
do that? Obviously थोड़ा मुश्किल था because initially जब हम practice कर रहे थे and we were preparing for the Olympics which was supposed to happen back then in 2020, so all of a sudden pandemic आ गया था and we didn't know and everything had comes to a standstill where we had to stay at our home, घर से we can't just come out, so we were really scared कि क्या होने वाला है, what is next. So at that point of time I think there was only 3 months for the Olympics and we were all prepared and everything, but unfortunately postpone हो चुका था and उसके बाद भी बहुत cases आ रहे थे कि अगर होगा कि नहीं. तो we were in a dilemma where what to do, like क्योंकि हमने 5 साल we were waiting for this Olympics and if that would have got cancelled it was a really of course हमारे लिए बहुत बड़ा है Olympics and it comes once in 4 years and we've trained for so long waiting for this, but thankfully things have been coming to normal and of course postpone हुआ था, but yeah, for good sake everything was fine in 2021 में हम Olympics के लिए थे. But at that point of time of course किरण जी ने of course बहुत लोगों को help किया था. Thank you किरण जी, because मैंने देखी थी कि बहुत लोग they were suffering from pandemic and there were a lot of people dying because of that, because of food. They didn't know what to do and they didn't get food, they don't know where to go, they had no houses, and of course to help them आपने जो भी किया, hats off to you and once again congratulations. Really I'm glad that मैं आज इधर हूँ आपसे बात कर रही हूँ. So sweet, Didi, it didn't just turn out good, you got another medal. Come on, they're just like how humble do you want to actually we were all 2016 में जब रियो में हुआ आप एक मेडल लेकर आई, तो 2020 में जो मेडल लेकर आते हैं उनसे यही एक्सपेक्टेशन होता है कि अरे ये एक और मेडल तो आएगा ही. So I can imagine that जो हम लोग expect कर रहे थे and what the actual athlete is expecting, because that you can get another one because you're among the top few in the world. और वो opportunities आपसे खींच रही थी. But आपने ये भी बोला है कि जब आप खेलने गए तो उधर वो जो crowd का जो support होता है, आपके fans का support होता है, that adrenaline rush when you hear your name, when people are saying India or PV, you miss that. और कितना फर्क पड़ा उससे? बहुत मिस कर रही थी because there was no crowd. It was something that we were just playing in an empty stadium and of course 2016 there was like the whole stadium was crowded saying India, come on PV. So it was comparatively a different thing, I would say. And back then 2016 was a different atmosphere and now it was a different atmosphere. But of course it was good that slowly sport start हुआ था, but unfortunately crowd नहीं थे. But definitely I've missed the crowd a lot. Hopefully in the next couple of years there's gonna be another Olympics. I would see the whole crowd sitting there and cheering. I would tell Bank of Baroda right now that please take a Nari Shakti team there and let me be there. And अभी से ये पैक कर लेते हैं कि जब भी शफाली और पीवी कहीं खेल रहे हो, एक हमारा गर्ल्स गैंग जाएगा जिसमें मैं साथ में, पता नहीं क्यों बट मेरे को होना है, मेरा आइडिया है इसीलिए. So yeah, we'll be there to cheer for you. Okay? Thank you. इसके साथ तो किरण जी की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी. एंड देखिए किरण जी, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपको कुछ, बिकॉज ये जो शेफाली हैं और पीवी हैं ये बचपन से डेडिकेटेड हैं और इनको अपना मार्ग शायद शुरू में दिख गया होगा, लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, आपके अंदर वो जो चीज थी वो एक सही टाइम पर बाहर निकल कर आई. और यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका जो आपका मार्ग है वो बचपन में ही दिख जाए. आपको जब मौका मिला, आपने लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा कि अब मेरी क्या उम्र है, अब मुझे क्या काम करना है, आपने यू जस्ट डिड इट. एंड दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर स्टोरी, दैट ऐसा नहीं कि आप पहले केटरर थे, पहले से खाना बना रहे थे और ऐसा आपका काम था. यू जस्ट सॉ द नीड, ये करना चाहिए और आपने किया. सो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने लोगों की मदद की. एंड जोरदार तालियां. धन्यवाद. और इसके साथ हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं नीलम जी. कैसी हैं आप? हेलो नीलम जी, नमस्कार, वेलकम. नमस्ते सर. कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू सर. अच्छा, मैं आप बाकी सबसे तो मिल चुकी हैं, लेकिन मैं इन सबको बताना चाहता हूँ आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी. देखिए,
शफाली यहाँ पर है एंड जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट में ना ऑलराउंडर्स के बारे में हमें बहुत समझ आ गई है, जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, अच्छे फील्डर भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो प्लेयर्स को ऑलराउंडर कहते हैं। वैसे ही नीलम रानी इज वन सच रिमार्केबल पर्सन हु कैन इजीली जगल हर फैमिली एंड अ प्रोफेशनल लाइफ। कुछ साल पहले की बात है, हर फैमिली वाज सडनली इन द मिडल ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ अ बिजनेस जो फेल हो रहा था। बट जब लाइफ ने ये बाउंसर उन पर फेंकी, she didn't duck, but she actually pulled it and knocked it out of the park. She boldly went out and took on some debt to start her own cosmetic shop. But शुरू में कोई customers नहीं आ रहे थे. The shop seemed to be not doing so well. शुरू के जो दिन थे, लोग नहीं आ रहे थे. पर इससे क्या उनको कुछ प्रॉब्लम हुई? Did this deter her? Absolutely not. Neelam never lost hope and kept working hard, day after day, one day at a time. Or ultimately, luck turned in her favor and the shop started doing well. Because of her determination, she could help her children get a good education and she gave her family the best life she could think of. Her cosmetic shop in Patiala is now a successful business and she is the biggest inspiration for her daughter. Neelam ji, first of all, आपको बधाई हो कि आपका जो काम था जिसको उसको इतनी सक्सेस मिली और आपने बहुत इंस्पायर किया। बट लेकिन जब शुरू में आपके पास कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, यू नो, जो आपकी स्टोरी में पता लगा, तो क्या लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि देखो महिलाओं से ना बिजनेस नहीं होता, ये आप छोड़ दीजिए, देखो अब चल नहीं रहा, लोग नहीं आ रहे? तो आपने उस समय कैसे अपने आप को बोला कि नहीं, मैं करती रहूंगी और मैं चलती रहूंगी? हाँ जी सर, उस समय मैं अपने परिवार के बारे में सोच रही थी कि मैंने अपने परिवार का कैसे गुजारा करना है, अपने बच्चों की कैसे भी फीस भरनी है, और मेरे परिवार ही मेरी हिम्मत बना। और हिम्मत बना, जब आपका परिवार आपकी हिम्मत बन जाता है तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आप में एक हिम्मत आ जाती है। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं टूट जाऊं, क्योंकि अगर मैं टूट जाती और मेरा परिवार को बहुत कठिनाई आ जाती, इसलिए मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने काम में ही अपना ध्यान देकर, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों, लेडीज को कहा कि हमारे कॉस्मेटिक की दुकान खुल गई है, आप यहाँ से आकर सामान लीजिए, और इस तरह हमारी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि जैसे मैंने आपको देखा, मैंने क्या बोला कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये कुछ कॉस्मेटिक्स का खुद ही का जो सामान है, आपने अब काफी अच्छा इस्तेमाल कर लेती हैं आप, है ना? थैंक यू सर। ये घोड़ा घास से दोस्ती कर चुका है क्या? नहीं सर, इतना तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिस अमेजिंग। और ऐसी ही बात मैं एक्चुअली शफाली से भी करना चाहता हूँ। क्रिकेट की बात हुई है, जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, मैं शफाली की शक्ल देखता कि हाँ, भैया को सब पता है कि डक नहीं किया, पुल किया। इंडिया में सब अपने आप को क्रिकेट के गुरु मानते हैं, कभी चाहे खेला भी ना हो, किसी भी लेवल पे नहीं, सबको लगता है कि इस बॉल पे तो ऐसा स्क्वायर कट मारना था। ऊपर से, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक लड़की होकर, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ने आपको बहुत मदद की, बिकॉज यू नो आपके डैड ने आपके अंदर वो स्पार्क देखा, लेकिन कठिनाइयां तो होती हैं, राइट? आपने बोला कि एज अ गर्ल टू प्ले दैट स्पोर्ट, जो इंडिया में ऑलमोस्ट एक रिलीजन है, बोल सकते हैं, है ना, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं। या ऑफ कोर्स तो स्टार्टिंग में बहुत सी डिफिकल्टीज आई, जैसे हमें एकेडमीज नहीं मिली लड़कियों की, यू नो, उस टाइम पे लड़कियों को कोई खिलाता भी नहीं था, बोलता था कि तू लड़की है भाई, बोल लग जाएगी, हम नहीं रखेंगे। बट उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे वहाँ पे एक ग्राउंड रहता था, वहाँ पे जाकर मुझे प्रैक्टिस कराई, और इन द एंड मेरे पापा ने मेरे लिए एकेडमी ढूंढी, और मैं वहाँ जाके एकेडमी भी जो मिल रही थी, एकेडमी वो ढूंढी मेरे पापा ने, जहाँ पे लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनसे पापा ने बातचीत करके उन्होंने लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया। बट मैं जब गई लड़कों के साथ खेलने, उन्होंने बोला कि हाँ तू लड़की, हम नहीं खिलाएंगे। तो फिर मैं फिर उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया कि भाई तू ये नहीं खिलाएंगे, तू जाके बैठ जा। बैठ गई, तो मैं घर पे गई, मैंने सोचा कि यार बॉय कट हो तो कैसा लगेगा, पता ही नहीं लगेगा ना कि भाई मैं लड़की हूँ। तो मैं गई, मैंने पापा को बोला कि पापा मैं बॉय कट होना चाहती हूँ, फिर पता नहीं लगेगा शायद, तो वो मुझे खिला लेंगे। एक्चुअली वो आइडिया मुझे उधर एक लड़की थी, उधर बॉय कट, एक लड़की साइकिलिंग करके जा रही थी,
तो मैंने सोचा कि यार ये शायद अच्छा बन सकता है, तो मैंने पापा को बोला और मैं बॉयकॉट होके गई। और उसके बाद उन लड़कों को पता भी नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ, और मैंने वहाँ जाके खेला और फिर उन्हें पता भी नहीं लगा। मैंने कुछ महीनों के साथ खेला और फिर मुझे लड़कियों की अकेडमी मिल गई उसके बाद फाइनली। तो हरियाणा क्रिकेट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उस टाइम पे उन्होंने मुझे एडमिशन दिया और मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है जब आपको एक छोटी छोटी चीजें यार ये जो तुम मेरे को बता रही हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पिक्चर की स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ। दिस इज कमाल है। हाँ नीलम जी की कहने हो, सोनी स्टोरी है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है। दसो कितना दी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। हाँ मतलब देख लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। एंड उस टाइम पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन अगर आपके पास टूर्नामेंट ही नहीं है अपने स्किल दिखाने के लिए, क्योंकि जितने लड़कों के टूर्नामेंट हो रहे थे उतनी लड़कियों के टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे उस टाइम, राइट शेफाली? जितने एकेडमीज थे वहां पर लड़कियों के लिए एकेडमीज नहीं थे। तो पर फिर भी जैसे आपका शुरू में जितना नहीं चलिया, कुछ शुरू लोग नहीं आए, पर तुसी भी नहीं रुके, तुसी भी कुछ और जुगाड़ लगाया हो ना। चलो बच्चों जाओ सारे दे घर जाके अपने आप दस के आओ आंटियां नू कि लिपस्टिक आ गई नहीं, कुछ ऐसा दा कीता सी कोई जुगाड़? हाँ जी सर मैं थोड़ा सामान लेकर जाती थी और अपनी फ्रेंड लोगों को और अपनी जो आसपास के लोग थे उनको दिखाती थी, जो उनको पसंद आता तो वो ले भी लेते थे, क्योंकि उनको बताती थी कि ये सामान बहुत अच्छा है, आप लीजिए। तो मैं इसको ना थोड़ी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। ये जो MBA वगैरह करते हैं जरा फूफा लोग, वो इन्हीं चीजों को अलग अलग टर्म्स देते हैं, सैम्पलिंग, मार्केटिंग, वो आपके पास एक्चुअली नेचुरली आपके अंदर है वो। एंड जो बिजनेस है ना, वो ये नहीं देखता कि क्या महिला चला रही है या मेल चला रहे हैं, वो आपका जो एटीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी है, वो बताता है कि आप कितना बिजनेस चलाएंगे। तो जोरदार तालियां। लेकिन इससे मेरे को एक शेफाली के लिए सवाल है। शेफाली, नाउ दैट आप खुद आप इंडिया के लिए खेल रही हैं, वो मतलब वो तिरंगा आपके छाती पे होता है जब आप खेलती हैं, ठीक है? हमने अब देखा है आपको कमाल के शॉट लगाते हुए, हम आपको सेलिब्रेट करते हैं पूरा इंडिया। लेकिन आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगी वो उस लेवल के स्पोर्ट पे जहां पर लड़कियों को उन मुश्किलों से ना जाना पड़े, नॉट द फैमिली वन, नॉट द सपोर्ट वन, कि फैसिलिटीज कैसी हों, कैसी ट्रेनिंग फैसिलिटी, क्या ज्यादा टूर्नामेंट हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट, क्या चीजें बदलनी चाहिए या क्या चीज आप देखना चाहेंगे जिससे और भी ये जो पूरा सिस्टम, बिकॉज पीवी आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन क्योंकि बैडमिंटन में सेम टूर्नामेंट में विमेन्स और मेंस होता है, राइट? बट इधर व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी, शेफाली? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगी कि अकेडमी ज्यादा खुले लड़कियों की, जो अभी काफी बेटर हो गई है। डे बाय डे भी बहुत वुमेन्स क्रिकेट इंप्रूव हो रहा है, और मैं चाहूंगी कि और ज्यादा अकेडमीज खुले और ज्यादा टूर्नामेंट हो लड़कियों के, ताकि वो हर एक टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ सीखे और जाकर अपने घर पे बताए, अपने फ्रेंड्स को बताए कि हाँ मैं क्रिकेट खेलती हूँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई लाइक दिस। टूर्नामेंट अगर हो तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा यूज होगा वुमेन्स क्रिकेट के लिए और बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। Awesome. पीवी, क्योंकि आप इससे बड़ा लेवल कुछ होता नहीं है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और ओलंपिक्स में एंड गेटिंग मेडल्स, आपने भी सोचा होगा इसके बारे में, कैन देयर बी सम इंप्रूवमेंट एट सम लेवल एंड व्हाट वुड इट बी? क्या देखना चाहेंगे आप बदलाव? I think initially ऐसे थे कि when a girl used to come out they would say no, you're not supposed to come out, you'll have to stay at home and stuff like that. But अभी बहुत changes हुआ था, and if you see right now, if you see in any sport, women are doing really well. Women are getting medals for the country, which is a very big thing. And I think being a woman, we should be proud about ourselves that we can do anything. It's just that we need to believe in ourselves. And we shouldn't be scared that, okay, men are doing this, like, so what? We need to take a step forward and make sure that, yes, we are equally strong enough to face anything and everything. So changes, I would say, yes, it should start from the grassroots level. The support, of course, the support that we are getting from the government, from the sports authorities and everywhere. So I feel that should be a lot more, and they need to support and encourage each one of them.
And I'm sure, I mean, in the next couple of years, in the couple of months, there'll be a lot more women coming forward. Well said, बीवी. बतूल जी, आपने जैसे अपने बारे में बताया कि बचपन में लोग बोल रहे थे कि ठीक है, गाती है, घर पे गा ले, सोसाइटी ने, समाज ने बोला. वैसे आपने देखा कि हमारी जो 2 विनर्स हैं, उन्होंने भी ऐसी कठिनाइयां देखी, लेकिन उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने उनको हरा कर आगे जीत हासिल की. उनके बारे में आपको क्या कहना है, इनकी कहानियों के बारे में? इनको कुछ कहना चाहेंगे आप सीधा? किरण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो को खाना खिलाया. और उस वक्त में कोरोना के वो टाइम में इन्होंने बहुत सबके लिए इधर उधर घूम के बच्चों को, या कोई गरीब है या कोई भूखे है, कोई पैसे उनको खिलाया. तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं तो. और बहुत ही बड़ी बात है. तो उस कोरोना में कौन जाता है कौन देता है, लेकिन बढ़िया ये संघर्ष किया तो बहुत अच्छी बात. करना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए. अच्छा, नारी शक्ति जैसे नारी है वो अच्छा रखना चाहिए. करना तो करना ही है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. जस्ट वांट टू से, अभी जितनी भी जो हमारी विनर्स हैं उनके पास एक मौका है टू आस्क पीवी एंड शेफाली अ क्वेश्चन. एक सवाल आप पूछ सकते हैं. तो शुरू करें. कौन पहले सवाल पूछना चाहेगा? नीलम जी, हो जाए सवाल. मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पूरे देश की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, और उस समय वो उम्मीदें आपको हौसला देती हैं या आपको डरा देती हैं, जब आप पर सारे देश की नजर टिकी होती है? So firstly, congratulations जी आपको. आपने मतलब बहुत लोगों को इंस्पिरेशन है. आपने बहुत हार्ड वर्क करके you've come so far. And my answer would be definitely वो बहुत encouragement है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग रहते हैं एंड प्रेशर रहता है किसी को भी, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम जा रहे और खेल रहे कोर्ट पे, तो बस एक ही रहता है कि हम अच्छा खेलना है, 100% देना है. बाकी लोग जो भी बोलो, और if they support you or if they shout, और वो encouragement हमारे लिए, I would say it's like we get a lot of power. बहुत power मिलता है कि वो लोग support कर रहे हैं और yes we have to play. हम खेलना है, देश के लिए खेलना है, क्योंकि I think that support is very important for us, because how much ever we play, at the end of the day I think that support would make us win. So it will definitely encourage me in a way. When I see people supporting me, that gives me a lot of energy. Awesome. Thank you, ma'am. नीलम जी, शेफाली के लिए एक सवाल. नमस्ते मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्रिकेट के मैदान में आपके कौन गुरु हैं? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? क्रिकेट की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? और इतनी कम उम्र में आप इतनी लगन और आप में इतनी ताकत कहाँ से आई? सबसे पहले आपको नमस्ते. आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसी वुमेन स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायर होती हूँ हमेशा. और मैं हमेशा सचिन सर, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली सचिन सर को बहुत सपोर्ट करती थी. उनके आउट होते तो हमारा टीवी बंद हो जाता था. आई थिंक आपके भी घरों में ये होता होगा, जब उनके आउट होते ही उनका टीवी बंद हो जाते थे. तो आई थिंक हमारी पूरी फैमिली को वो पसंद थे, और मुझे भी बहुत पसंद थे. एक दिन हमारा हरियाणा में रणजी मैच था, उनका लास्ट रणजी मैच था सचिन सर का. तो वहाँ पे बहुत क्राउड था, हमें टिकट मिलने में बहुत मुश्किल हुई. तो बट मेरे पापा ने इन द एंड बहुत मुश्किल से टिकट मेरे लिए मैनेज की. मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे मैंने लास्ट सचिन सर का रणजी मैच देखा, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर मैं मैच के अंदर खेलूंगी और इतना क्राउड होगा, इतने बंदे होंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा. तो आई थिंक उस मैच के बाद मैंने बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज लाया, और मैं क्रिकेट के लिए और सीरियस होगी. और तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें सुन के, देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट से हमेशा बहुत इंस्पायर होती हूँ, और आप सब लोगों को थैंक यू करती हूँ इस चीज के लिए.
Thank you so much, नीलम जी, for your questions. किरण जी, आपके पास भी सवाल है पीवी जी और शेफाली जी के लिए? हाँ, मैं पीवी सिद्धू से बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं पहले तो आपको बहुत सैल्यूट करती हूँ कि आपने दो मेडल जीते हैं, पद्म श्री और पद्म भूषण। और आगे मैं यही करना चाहती हूँ कि आप सारी लड़कियों को ऐसा कुछ संदेश दीजिए ताकि आपकी तरह और भी वो आगे आए और नारी शक्ति का नाम हो। डेफिनेटली किरण जी, फर्स्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी स्पोर्ट ले रहे हैं या स्पोर्ट खेल रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क तो होना ही है। हार्ड वर्क करने से ही यू कम अप इन योर लाइफ। मतलब हार जीत तो होते रहते हैं, बस यही रहना है कि यू हैव टू हैव बिलीव इन योरसेल्फ। वो बिलीव रहना है कि हम कुछ भी कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गो अहेड। एंड और एक बात ये है कि पेरेंट्स सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट होने से दे गाइड देयर चिल्ड्रन इन अ वेरी राइट वे। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, तो जो हम मिस्टेक करते रहते हो तो पीछे से बोलना है कि ऐसे कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ मिस्टेक। सो वो चेंजेस you have to take them in a right way. तो इसीलिए that is when you work hard and you come up in your life. And at the same time, I think it's very important that as a woman, as a girl, as a youngster, they have to know what they like. जो भी खेल रहे हैं वो लोग enjoy करना है। ऐसे नहीं है कि दूसरे लोगों के लिए खेल रहे हैं। They need to enjoy sport. जो भी हो, स्टडीज में या स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी इस पे enjoy करना है। क्योंकि बाद में ऐसा नहीं रहना है कि अगर हम when we look back we shouldn't regret anything in life. You have always have to enjoy in what you do, and as I mentioned, हार जीत तो होते रहते हैं, but that is part of life. मेरे लाइफ में भी मैं बहुत लॉसेस थे और बहुत विनिंग मोमेंट्स भी थे, but I am here क्योंकि I've learned from my mistakes and I've come up. So wow. I just suggest all the youngsters out there कि hard work करो और जो भी कर रहे हो enjoy करके just play your heart out and give your 100%. Well said PV. किरण जी, शेफाली जी के लिए एक सवाल है आपके पास? हाँ, शेफाली जी नमस्ते। आपने इतनी छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो बहुत बढ़िया काम किया है आपने। लेकिन आप लड़कियों को और भी आगे लाए और क्रिकेट में जुड़े। आज तक खाली लड़कों को ही क्रिकेट के मैदान में देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह ऐसी बहुत सारी लड़कियां इंडिया में आए और अपना नाम आपकी तरह रोशन करें, ताकि हम लोग का भी नारी शक्ति का काम अच्छा हो। या ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मेरे हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे से भी छोटी उम्र की लड़कियां खेलती है, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो भी बहुत मुझसे भी अच्छा कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा ही चाहती हूँ जो भी मेरे सराउंडिंग है उनको मैं हमेशा लेके चलूँ, जितना भी मुझे आता है मुझसे ज्यादा उनको सिखाऊं। जो भी मैं सीखती हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सराउंडिंग है उनको मुझसे ऊपर लेके चलूं। तो आई थिंक मैं जब औरों को सपोर्ट करती हूँ तो मेरे लिए अच्छा होता है, तो मैं उस चीज को हमेशा लेके चलती हूँ कि हाँ ये चीज मेरे लिए मेन है। Nice, very nice. Thank you for your answers. मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि लाइफ में जिनकी भी स्टोरी करें, बैलेंस बहुत जरूरी है। और पीवी ने भी बोला कि मजे आने चाहिए, you should have fun. तो जब आप खेल रहे हो तो जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक आप और अच्छे नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कुछ मजे हो जाएं। जो हमारी जो दोनों सुपरस्टार्स हैं स्पोर्ट्स की, पीवी एंड शेफाली, मैंने नोटिस किया कि आप दोनों स्पोर्ट्स की नहीं बल्कि सोशल मीडिया की जो जगह है ना, वहां पे भी सुपरस्टार्स हो। हमने आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें काफी छानबीन की है, वी फाउंड सम इंटरेस्टिंग स्टफ। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिससे आपके फैंस ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन. PV looking very nice in this yellow outfit and nice video. Do you put a lot of stuff on social media and does it come naturally to you?
Yeah, I mean, it's always badminton, so something different, something apart from badminton. So yeah, I just like, Okay. yeah, तो whatever ये I बहुत like. इंटरेस्टिंग। एक फैन ने कहा है कि you've been posting a lot of reels using Tamil songs. Yo, Tamil terima. Is something brewing? Maybe a movie in the cards or a collaboration of some kind? Are you going to be singing, dancing? What's happening? Are you trying to hint to your fans? No, Tell no, me. no. No, nothing like that. But yeah, I just like that song, and I just posted on my social media. But yeah, I mean, I really like to enjoy myself and something like that. So it's not, nothing is cooking. So don't worry. Right now it's Okay. just badminton. बस badminton ही है अभी. Okay. नहीं तो वहां पर भी काफी सारे जो actors है, female actors, they would have to get ready because you have a very competitive spirit. Okay, there's another one. You're in this very cool orange jumpsuit kind of a thing. I like it. I think it's cool. Very NASA. But अब मैंने कुछ कमेंट नहीं किया ऐसा, आपके फैन ने कमेंट किया है कि मुझे लगा कि लॉकअप में एंट्री हो रही है। हाँ, have you ever had any run-ins with the law? No. That I'm sure you didn't because we would have known. But were you a naughty kid? Were you mischievous in school or college? Such stuff. No, I was not a naughty kid, but I was a lot more into sports, and I would tell all my friends to, let's play something. So we used to have a lot of sport in the school, and people used to initially think that when I used to have tournaments, obviously मैं permission लेती थी स्कूल से कि मैं tournament को जाना है, तो मेरे friends सोचते थे कि क्या कर रही है ये, बस ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है. Now they tell me that time we didn't expect you, when you were going, we just took it very easy. So these are few fun things, but apart from that, मैंने जब I was in my 7th standard और मैं खेल रही थी स्कूल होने के बाद, so मेरा bags बाजू में थे, and my dad came and we were searching for my bag and I lost my bag. And I do not know how did I lose it. I haven't even got that bag in return, but I lost all my books. ये ना, ये so sweet. आपने अपनी books जानबूझ के गायब कर दिया और उसके किसी और पे इंजाम आ रहा है ये. That PV एक मेरा खुद का मैंने सोशल मीडिया पे देखा है. It's a throwback Thursday from your side. And obviously you're really young, and it's back in 2007, I'm guessing. And I think you were managing your studies in badminton and becoming this smashing sportswoman that we know today. But you've also mentioned something about Bob World in the caption. What is Bob World? Well, you don't know what Bob World is. It is, don't you? I have an idea, but I'd like to know from you. Yeah, so it's Bank of Baroda's app to do it all. I use it all the time, of course, to compare prices and save more. Invest in FDs, apply for digital loans, and shop with just one app. So it's like super safe and easy to use. So yes. Wow, man! And now see, I knew about it, but समझ मुझे अभी आया है. जैसे आपने पढ़ाई के साथ बैडमिंटन की, वैसे ही अब आप बॉब वर्ल्ड के साथ, बैंकिंग के साथ शॉपिंग भी कर सकते हो, right? Yes, of course, and you also get a lot of benefits. So. And I really like the name Bob World because it's actually the abbreviation Bank of Baroda, Bob World, and it's so cool and hip, yeah. Well done. किसी को तो मतलब Bank of Baroda में अपना जैसे पीठ थपथपानी चाहिए. Whoever came up with this, very cool, Bob World. So you think I should also balance between banking and shopping? But I think my wife's already doing it. वो already कर रही होंगी. She's on Bob World, I'm telling you. आपके साथ साथ even Shafali, she's also very active in her social media. Shafali, can I ask you? ये आपने एक बड़ी अच्छी फोटो डाली है. You're doing आप कुछ फिटनेस की एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पर आपके फैंस ने ऐसा कुछ ये बोला कि भाई कुछ हमें भी टिप्स दे दो, कुछ फिटनेस टिप्स. खुद ही बन जाएंगी फिटनेस, कुछ हमें भी कुछ फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे अपने फैंस को? ऑफ कोर्स मैं भी हमेशा हर एक सबकी फिटनेस लेवल देख, जैसे पीवी दी है उनकी फिटनेस देख के, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन उनकी देख के इंस्पायर होती हूँ.
तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप फिट हो तो आप अपने आप को बैक कर सकते हो और ज्यादा, अपने आप को पुश कर सकते हो और ज्यादा। तो आई थिंक मैंने यही सीखा है अभी तक, और आगे मैं जो सीखूंगी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। ठीक है, हाँ वो यही ना, सोशल मीडिया में तो यही है कि जब कुछ नया सीखा, कुछ नया बताना हो तो उस दिन पोस्ट कर दिया, है ना। तो वेरी गुड। ये वाला जो सवाल है ये आपके फैंस नहीं, मुझे भी आपसे पूछना है। अगले फोटो में आपने गिटार पकड़ा हुआ है और आपने लिखा है where words fail music speaks। हाँ, तो उसपे आपके फैंस ने लिखा है कि क्या है सीन, आप क्या गाना गाती है, डू यू सिंग? ये गिटार ऐसे पोज के लिए पकड़ा है कि ये एक्चुअली आपसे बच भी सकता है? डू यू, क्या है राज, क्या है इस फोटो में? एक्चुअली वो सिर्फ दिखाने के लिए है अभी तो, बट मुझे होश होगा कि भाई गिटार बजाना सीखना है, बट उस टाइम वो दिखाने के लिए कि यार पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, आता तो है नहीं बजाना, बट मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है और गाने सुनने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने सोचा यार चलो एक फोटो पोस्ट ही कर देते, जिस दिन बजाना आएगा उस दिन वीडियो ही पोस्ट कर देंगे। So sweet। तो अभी आप मतलब वैसे जैसे बाकी यंग लोग अलग अलग चीजों के साथ पोस्ट करते हैं, आप भी तो नॉर्मल, you're an athlete, you're a superstar athlete, both of you, but you also have a normal side, you're also young people। तो अच्छा लगा मुझे जानकर कि थोड़े पोजिंग वाली भी चीजें, नॉर्मल चीजें भी हैं, सिर्फ क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है लाइफ एक स्पोर्ट्समैन की, तो ये लाइट मोमेंट्स, हंसी मजाक, दोस्त, थोड़ा लेग पुलिंग वगैरह और थोड़े लाइट मोमेंट्स जरूरी हैं, बिकॉज उसी के साथ साथ फिर बैलेंस होता है, देन यू गो आउट एंड डू व्हाट यू डू ऑन द फील्ड। एक बार दोबारा से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, अपना पसंदीदा कोई भजन। आपको धन्यवाद। मैं मोदी जी के सामने जो गाया वो भजन आपको बिल्कुल सुनाती हूँ, और मैं शुरुआत भी गाना बजाना के लिए बैठती हूँ तो मैं तो गजानन जी का, गणेश जी का ही भजन गाती हूँ शुरू से ही, जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वहां से अभी सुनाती हूँ आप। धुंधाला गज बंदना तो सदा सुहाना वेश, सारा पेली शिवरिये तो गंवरी पुत्रे गणेश। ओ प्यारा गजानन देवा, ओ प्यारा गजानन देवा, गजानन देवा, ओ प्यारा गजानन देवा, प्यारा गजानन, ओ प्यारा गजानन, ओ खेलत घर आओ जी, आओ मारा, ओ प्यारा गजानन, ओ घूमत घर आओ सा, आओ मारा, ओ प्यारा गजानन। रणते भंवरी से आओ जानन, रणते भंवरी से आओ गजानन, बोले ना तुम्हारी ऐसी मोदी, आओ मारा गजानन, बोले नारी ऐसी मोदी, आओ
Wow, this was amazing. तालियां. PV शेफाली, आप कुछ बोलना चाहेंगी बदूल जी से? और मैं बजाती हूँ या गाती हूँ, और मेरा पोता भी है, इनको सिखाया हूँ, इशारत करता है। मेरा बेटा भी है, इनके साथ यहाँ आती हूँ, रहती हूँ, और इनका भी आपको जरा सा बताती हूँ तबला। तो मैं बताती हूँ, सिखाती हूँ इनको सबको। बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के, बहुत मजा आया वो भजन सुन के। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जो हमारी विनर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स पीवी, थैंक्स शेफाली, यू गाइस आर ऑल वेरी इंस्पायरिंग वुमेन। थैंक यू मच। This is actually, to be honest, been a really warm and inspiring event. The stories of these strong women will remain with me for a long time to come, and I'm really blessed that I got this interaction with all of you. Thank you, Bank of Baroda, for organizing events that bring the amazing women of India to the forefront. And now, Yeah, sorry, I'm interrupting. and now, no, that's okay. That's okay. You can do whatever, BB. Just smash it. Just smash it. Don't drop it. Just smash it. नमस्कार बतूल जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। Thank you so much, and of course, thank you, Ranvijay. You've been a really good host. It was really nice talking to you, and of course, even Shefali. Hopefully, we'll see you soon. All the very best in your life, and thank you, Neelam ji, and thank you, Kiran ji. Once again, it's a great initiative from the Bank of Baroda, and I'm really privileged to be here in front of you and talk to you all.